Assalamualaikum audience. Today we will study chapter number 3 of English. The dog, the cock and the fox part 2. तो बेसिकली पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि डॉग और कॉक जो हैं वो एक सफ़र पर निकलते हैं फ्रांस जाने के लिए डॉग की कज़न से मिलने के लिए, ठीक है। वहाँ पर डॉग जो है वो एक ट्री के होल के अंदर सो रहा होता है और जो कॉक होता है वो ब्रांचेस के ऊपर होता है। कॉक जो है वो सुबह उठ के जो है ऊंची ऊंची आवाज़ में सिंग करता है, सबको जगाता है। तो वो आवाज़ सुनकर एक भूखा फॉक्स जो है वहाँ पर आता है। तो अब देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है। द एग्रीमेंट. You remember a dog, a cock were going on holiday. They had found a hollow tree. The dog had gone to sleep in it. The cock had woken up early. He was singing. A fox was standing at the foot of the tree. He had come to see who was making all that noise. तो बेसिकली इन्होंने यही ओवरव्यू दिया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। द फॉक्स वॉज लुकिंग अप एट द कॉक. ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस. द फॉक्स लुक्ड बिहाइंड The fox looked kind and friendly. Excuse me, the fox shouted. He had to shout because the cock had started singing again. तो अब उसने कुछ तरकीब सोची। फॉक्स ने शाउट किया एक्सक्यूज़ मी और ऊंचा बोला क्योंकि कॉक जो है उसने दोबारा से सिंग करना शुरू कर दिया था। Excuse me sir, I'm sorry to stop you. I just want to say what a lovely voice you have. You could become rich with a voice like that. You could get a job in our opera house. We are looking for a good singer. Now why don't you come down here? Let's talk about it. I'll help you get the job if you like. But first I must ask you to sign this agreement. The fox took a sheet of paper from his coat pocket. It had a lot of writing on it. The writing was very small. तो अब उसने फॉक्स ने क्या कहा कॉक से कि आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, आप ऐसा करें हमारे ओपरा हाउस में जो है वो आप सिंग करें आके। और उसको सिंग करने के लिए कि आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और उस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए आप ऐसा करें कि दरख्त से नीचे आ जाएं। An agreement. The cock thought carefully about this. I know my voice is good, he said to himself. It is loud and strong and musical, but I don't think I will ever be an opera singer. This fox must be planning something. I would rather be careful. तो अब कॉक जो है उसने बड़े समझदारी से ना उसने सोचा कि माना मेरी आवाज़ अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं एक ओपरा सिंगर बन सकूं। इस फॉक्स का लाजमी कोई और जो है वो प्लान है। Do you really think I have a good voice? The cock asked. Perhaps you are right. Perhaps we should have a talk. But you are up there and I'm down here, said the fox. We cannot talk easily like this. He felt pleased with himself. He was sure the cock was just a silly old bird. He was sure he could make him come down. तो फिर भी कॉक ने क्या कहा, उसने कहा अच्छा मेरी आवाज़ वाकई इतनी अच्छी है तो फिर हमें बातचीत करनी चाहिए। फॉक्स ने कहा लेकिन हमें ऊपर आप ऊपर है, मैं नीचे हूँ, आसानी से बात नहीं कर पाएंगे। उसको बस यही लग रहा था कि तो बेवकूफ़ सा एक जो है वो परिंदा है और मैं इसको बेवकूफ़ बनाकर नीचे बुला ही लूँगा। Come up here. You are right, sir, said the cock. We must sign an agreement. Then we must shake hands. That is the way to do things. The fox was more pleased than ever. Are you coming down then? Not before tea time, said the cock. I never come down to the ground before 4. He sang some more of his favorite morning song. The fox was not so pleased. It was still early morning. Tea time was a long time away. The fox had had nothing to eat for a week. तो कॉक ने कहा ठीक है मैं आऊँगा नीचे लेकिन अभी जो है वो टाइम नहीं हुआ मेरे नीचे आने का। मैं शाम 4 बजे से पहले नीचे नहीं आता। और उसने दोबारा से गाना गाना शुरू कर दिया। अब फॉक्स को बड़ी तंगी आई क्योंकि अभी तो सुबह का टाइम था और शाम होने में भी बड़ा टाइम बचा था और जो है फॉक्स ने पूरे हफ्ते से कुछ नहीं खाया था। Then suddenly the cock stopped singing. Why don't you come up here? He asked. Up there? The fox began to smile again. Then he remembered something. I'm afraid I can't climb trees, he said. Oh, that doesn't matter, said the cock. This tree is hollow. There are stairs inside it. Go round to the back. Just knock on the side of the tree there. My servant will let you in. He will show you the way up.
तो कॉक ने फॉक्स से कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ऊपर आ जाएं बजाय इसके कि मैं नीचे आऊँ। फॉक्स ने कहा कि मुझे तो दरख्त जो है वो चढ़ना नहीं आता। उसने कहा कोई बात नहीं, ये दरख्त अंदर से खाली है और अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप जाकर खटखटाएँ इसको, मेरा जो भी मुलाजिम है वो खोलेगा दरवाज़ा और आप ऐसा करिएगा कि आप अंदर आ जाइएगा। Knock, knock. Hollow tree, the fox thought. Servant? Stairs? The fox could not believe it. He was weak with surprise. All right then, he said. Knock loudly, added the cock. That servant of mine is old. He can't hear well. I'll knock as loudly as I can, said the fox. तो उसने कहा, हैरान वो बड़ा हुआ फॉक्स के दरख्त में जो है वो सीढ़ियाँ होंगी और मुलाजिम होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उसने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो कॉक ने कहा कि ज़ोर ज़ोर से बजाइएगा। उसने कहा मैं जितनी ज़ोर से बजा सकूँगा मैं बजाऊँगा। The fox walked around the tree. He saw a hole. He could hear a small soft noise. Someone was inside, asleep, snoring. He lifted his front leg to knock on the side of the tree. तो वो उस दरख्त के पास पहुंचा, उसको किसी के सोने की और खराटे लेने की आवाज़ आ रही थी और उसने क्या किया, उसने नॉक करने के लिए जो है वो अपनी टांग उठाई और ट्री के साइड पे गया। Now you may not know this, but dogs love to run after foxes. They will frighten them badly if they can. Dogs are dogs. They cannot help it. It is in their nature to do that. तो आप वो कह रहे हैं कि आप लोगों को तो शायद ना पता हो, लेकिन डॉग्स की जो है वो नेचर होती है कि वो फॉक्सेस के पीछे भागते हैं और उनको डराते हैं, ये उनकी नेचर होती है। बैंग 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 द फॉक्स नॉक्ड लाउडली ऑन द साइड ऑफ द ट्री. व्हाट सेड द डॉग टू नोबडी एट ऑल. समथिंग हैड वोकन हिम. Someone was making a loud, rude noise. He stuck his head out of the hollow tree. He rubbed his eyes. He saw a fox. The cock looked down from his branch. His plan had worked. I think I know what is going to happen next, he said to himself. Do you? तो जब बहुत ज़ोर की आवाज़ आई तो नींद ख़राब हो गई डॉग की। उसने उठ के दरख्त से बाहर मुंह निकाल के देखा कि ये कौन है जो इतनी ऊंची आवाज़ निकाल रहा है, जिसकी वजह से उसकी नींद ख़राब हो गई है। और फिर उसके बाद क्या हुआ होगा बच्चों, उसके बाद जो है डॉग जो है वो किसके पीछे लगा होगा, फॉक्स के पीछे लग गया होगा, ठीक है, उसको बहुत डरा दिया होगा। ये देखिए ये हॉलो ट्री है, अंदर डॉग है और बाहर जो है वो फॉक्स नॉक कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछें। थैंक यू सो मच। वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।